Hello everyone, welcome to our new YouTube channel. I am Nitesh and along with my teammates at Krishi Shiksha, we are excited to introduce our new lecture series on plant pathology. This series aims to provide in-depth knowledge, making it highly beneficial for the students preparing for various competitive exams, including ICAR, UG and PG, ASRB, NET and many more. In this series, I will be covering mycology part, focusing on the latest classification system proposed by Kirk et al. 2008 and comparing it with older classification system. We will begin by covering fundamental concepts before moving on to the more advanced topics. So the lecture series is structured into two levels. In level 1 series, we will cover mostly the fundamental parts. It's the beginning. Level 2 series focused on the advanced mycology, providing an in-depth understanding on various fungal genera. Stay tuned, support for us for upcoming videos. Let's get started. Mycology. First of all, what do you mean by mycology? Let's see. It's derived from two Greek words, means mycos plus logos. Two Greek word, mycos plus logos, in which mycos stands for mushroom and logos means study. So overall we will call it as mycology is a study of mushroom. How the mushroom arise, कैसे mushroom सबसे पहले आया. So the main interest in fungi start with the observation of beautiful umbrella shaped fairy rings. है ना? Have you seen the mushroom which was growing in the shade of the plant? ये क्या करते हैं, जैसे आपका पेड़ का शेड है उसमें जो टर्सरी माइसिलियम होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी माइसिलियम, वो हम आगे देखेंगे. तो वो क्या करते हैं, एक सर्कल मैनर पे ग्रो करते हैं, है ना. Because of their structure, it was looking like fairy rings are dancing there, है ना. These are the various mushroom structure looking like this. It resembles like fairy rings. They are dancing. So earlier people used to know that there are two type of mushroom. One is edible mushroom, which they will call it as mushroom only, and another one is poisonous mushroom. They will name it as toadstool. There is an interesting story behind it, which is the Roman Emperor Claudius Caesar was murdered by his wife, who mixed his food with Amanita phylloides. So basically the toadstool, in German it's called Toadstool. Toadstool, which literally means death chair. Amanita is a genus of poisonous mushroom, Amanita. It's one of the poisonous mushroom. Okay, it's highly poisonous. Claudius Caesar using Amanita phylloides. After that बहुत सारे theory दिए गए थे. What will be the possible origin of the mushroom? So earlier people used to say it as the evil ferment of the earth. Evil ferment of the earth. Who said this? Said by Nicander. तो थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे हिस्ट्री पोर्सन. आई नो दैट हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होती है, बट वी विल ट्राई टू कवर इट इन इंटरेस्टिंग मैनर, इन अ वोल स्टोरी मैनर. ओके. सो अर्लियर पीपल ऑल्सो कॉल्ड इट एज दे आर ओरिजिन फ्रॉम द ब्रेथ ऑफ द स्नेक. देखो कितना डरावना डरावना नाम दिया जा रहा है मशरूम फंजाई को, है ना. ब्रेथ ऑफ द स्नेक. आफ्टर दैट फिनोमेना, है ना, दैट poisonous mushroom, people used to name it as owl ferment of the earth,
breath of the snakes, है ना. Some people used to say that it was arises from the thunder. जब भी thunder होता है, after that there will be some lighting in the ground, and after that there will be possible origin of the mushroom. So these are all the earliest theories which people gave. Mushrooms were popular among the Roman potters and sculptors. You will see a series of stone sculptures bearing designs of mushroom have been collected by Vasan and Vasan, है ना. So the record of mushroom stones from Guatemala, mushroom stones का जो record है वो Guatemala में भी है. Guatemala. So वहाँ पे क्या है, वेरियस मशरूम्स के स्कल्पचर्स हैं, मतलब वेरियस स्टोन्स वगैरह मशरूम्स के डिज़ाइन के स्टोन्स बनाए गए हैं. तो इट वाज प्रूव्ड दैट मशरूम को लोग बहुत पहले से ही मान्यता देते हैं, मतलब दिए हैं, है ना. सो देयर वाज आल्सो फ्यू साइंटिस्ट लाइक क्लूजियस. इनको मशरूम्स पे बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने जब भी फील्ड जाते थे, दे विल सी द वेरियस डिफरेंट कलरफुल मशरूम्स, है ना. सो इस टाइप के होते थे. हैव यू सीन द वेरियस कलरफुल मशरूम्स. सो क्लूजियस वाज मेंशन्ड दोज मशरूम्स इन हिज ड्राइंग. ही वाज ड्रॉ द मशरूम्स इन बाय हिज वाटर कलर. वो वाटर कलर से मशरूम, वेरियस मशरूम्स के ड्राइंग किया था उन्होंने, तो उसमें भी मेंशन है. फंजाई तब तक सस्पेक्ट नहीं किया, उसके अच्छे तरीके से स्टडी तब तक नहीं की जब तक अर्लियर माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं था. तो उस टाइम तक हम फंजाई को बस एक मॉर्फोलॉजी लेवल पे ही देखा करते थे कि हाँ, इट वाज लाइक ब्यूटीफुल एंड हाउ इट विल ग्रो इन द सॉइल, है ना. सो पीपल ऑल्सो यूज टू सी दैट अर्लियर कि फंजाई जो है वो लाइक इट वॉज सॉइल, एंड फंजाई विल ग्रो इन द अटैच टू द सॉइल, है ना. लाइक प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स विल ग्रो अटैच टू द सॉइल. In the same manner, fungi will also grow attached to the soil. So people used to call that it's a type of plant only. Okay. तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से उसे डिफरेंट किंगडम्स में डाला गया. तो वी विल ऑल्सो स्टडी द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्सो. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, अब हम 18th to 17th सेंचुरी में चलते हैं. ये सब अब हमने जो देखा पुराने काल के जो BC थे, तो AD थे, ये सब में इन सब का जैसे जिक्र हुआ था. बिफोर दैट वी विल सी द हाउ माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड. इफ़ वी सी द साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम जानते हैं कि एंटोनी वैन लीवेनहुक एंड रॉबर्ट हुक, ओके, दे आर द साइंटिस्ट हु इज़ हैविंग द कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना. रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था जो कि डेड सेल था, वी ऑल नो. एंड एंटन वैन लीवेनहुक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था. इन्होंने बैक्टीरिया का भी डिस्कवरी किया था, है ना. बट इन द माइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देन द डिस्कवरी इज ऑल्सो डिफरेंट. ओके, एंटन वैन लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम इन्होंने इनका सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया था. फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप. In his simple microscope, this is the lens and it was surrounded by the metal plates. Okay, he saw the yeast. इन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा? ईस्ट देखा. So Anton van Leeuwenhoek, he is also known as father of microbiology. Okay, and after that Robert Hooke, he has a compound microscope. Robert Hooke का compound microscope कुछ इस तरीके से दिखता था. But if the question came that who discovered the first compound microscope, it was given by Jensen and Jensen. Jensen and Jensen, father and son relationship था Jensen and Jensen. They discovered the first properly working compound microscope in the year, देखो ये सरप्राइजिंग होगा, in the year
1590 यानी कि 16 सेंचुरी में ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर कर चुका था। आफ्टर दैट तो लीवेनहुक का इसमें कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने इसके लेंसेस में कुछ मॉडिफाई किए थे, है ना। लीवेनहुक ने, ये जेंसन एंड जेंसन ने जो प्रॉपरली वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, इनके कुछ लेंसेस में मॉडिफिकेशन का काम किया था। तो रॉबर्ट हुक के पास भी इनका अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। उसमें इन्होंने फर्स्ट, if we talk about the mycological point of view, Robert Hooke first illustration of microfungi. Okay, so what are those microfungi? He saw the sporangia of Mucor. Sporangia of Mucor and teleospore of rose rust. Teleospores of rose rust. These are the sexual spores. And rust is a obligate parasite. So scientifically its name is Phragmidium mucronatum. है ना। इन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्स्ट इलुस्ट्रेट किया था माइक्रोफंजाई का, जिसमें उन्होंने स्पोरेंजिया ऑफ म्यूकर देखा एंड टीलियोस्पोर ऑफ रोज रस्ट देखा। आफ्टर दैट पियर एंटोनियो मिकेली, इन्होंने क्या किया, अब तक तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था, तो आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, मेड फुल यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, मेड फुल यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें इन्होंने क्या किया, फंजाई का एक्सटेंसिव स्टडी किया, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया इन्होंने। एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फंजाई। अर्लियर जो हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक, उनका ये कहना था कि फंजाई आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड पॉट्स rather than the seeds. Seed pods means there is a structure inside which there will be seed. Seed pods, जैसे आप साइंस फिक्शन वाली मूवी देखते हो, उसमें स्लीपिंग पॉड्स होती है ना, जिसके अंदर इंसान सोता है और वो बहुत टाइम तक वो सोया ही रहता है, उसका एज एरेस्ट कर लेते हैं, लाइक दैट सीड पॉड्स इनसाइड विच देर विल बी सीड और देर विल बी समथिंग फॉर द जर्मिनेशन। But after the extensive study of the fungi by P.A. Micheli, he said that it was wrong. He proved that, what he proved is that fungi was originated from spores. Originated from spores. In 1729, it's a date, 1729, Micheli published Nova Plantarum Genera in Latin, है ना। हालांकि मिकेली एक इटालियन बॉटनिस्ट थे, ही वॉज अ इटालियन बॉटनिस्ट। In 1729, he wrote the book which was in Latin, okay, Nova Plantarum Genera. Nova
Plantarum genera. It was in Latin. If we talk about the contribution of Robert Hooke, it's Micrographia. In 1665 इन्होंने जितने भी अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफंजाई या फिर इन्होंने द कॉर्क सेल का डिस्कवरी किया था, वट एवर दे फाउंड इन हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ही वॉज मैंशनड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665 इन्होंने पब्लिश किया था. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1665 विच इज माइक्रोग्राफिया. Micheli is also known as father and founder of mycology because after he proved that fungi was originated from the spores, after that he was reputed as mycologist, है ना, इनको mycologist का दर्जा दिया गया, and then he is also known as founder and father of mycology. Founder and father of mycology. उसके बाद at the mid 19th century there is a scientist focused on the study the life history of fungi. At the mid 19th century तब तक लोगों ने फंजाई के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर चुका था, हाउ दे ओरिजिनेट ये भी डिस्कवरी कर चुका था. जो पुराने जो थ्योरीज थे दैट फंजाई ओरिजिनेट फ्रॉम द थंडर, है ना, वट एवर दे आर डिस्कार्डेड, एंड देन आफ्टर दैट इट वॉज सीन दैट फंजाई वॉज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पोर्स. तो इन सब के बाद एट द मिड 19th सेंचुरी है ना, साइंस इज अ क्यूरियस सब्जेक्ट. साइंस में क्यूरियोसिटी हमेशा बढ़ता है. So, in mid 19th century scientists used to prove the life histories of the fungi, है ना, but जो different scientists थे they failed to recognize that they will study the different phase of the same fungus, है ना, before which there was a scientist, we call it Tulasne brothers. टुलसने ब्रदर्स, इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया दैट फंजाई एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म. इनकी इसी रिवोल्यूशनरी आइडिया के कारण ये टुलसने जो ब्रदर्स थे, वन इज सी टुलसने एंड अनदर वन इज LR टुलसने, है ना, दे बोथ आर ब्रदर्स. तो इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया दैट फंजाई एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय डाइमॉर्फिज्म? इन दिस इज द फंजाई एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्टेजेस. वन इज imperfect stage, imperfect and perfect stage. What do you mean by perfect and imperfect stage? करते हैं explain. Imperfect in the sense asexual. ये हम आगे पढ़ेंगे. इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, है ना. परफेक्ट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्टेजेस, है ना. आफ्टर दैट द साइंटिस्ट केम टू नो दैट दे विल स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम फंगस. एक ही फंगस के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ रहे थे. एक ही फंगस एग्जिबिट करेगा एसेक्सुअल स्टेज भी और एक ही फंगस एग्जिबिट करेगा सेक्सुअल स्टेज भी, है ना. एंड जो फंजाई एग्जिबिट करते थे उनको वेरियस ग्रुप्स पे रखा गया, बट कुछ फंजाई ऐसे थे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते थे, वो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, तो उनको एक ग्रुप पे रखा गया. देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम फ्यूकल. He organized those fungi which are only performing the asexual reproduction. He named the group as fungi imperfecta.
जिसमें ओनली फंजाई थे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते थे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। टुडे वी विल नेम दिस एज एनामॉर्फिक फंजाई, क्योंकि फंजाई इम्परफेक्टा इज नाउ एन एब्सोल्यूट टर्म, सो अभी हम लोग कहते हैं इसको एनामॉर्फिक फंजाई। अर्लियर इट वाज आल्सो कॉल्ड एज ड्यूटेरोमाइकोटीना, व्हाटएवर, ड्यूटेरोमाइकोटा, माइकोटीना कहते थे, बट अब ये कोई भी टर्म जो है वो ऑब्सोलीट टर्म है, एंड टुडे इट वाज ओनली कॉल्ड एज एनामॉर्फिक फंजाई। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो। है ना। रीसेंट क्लासिफिकेशन जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई है, तो अगर हमें पुराने ही क्लासिफिकेशन पता थे ज़्यादातर, बट if you want to study the mycology means we have to know the recent classification also, और हम कंपेयर भी करेंगे पुराने क्लासिफिकेशन से कि what are the changes which occurs, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। तो ये जो चेंजेस आई है, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, इट वाज नोन एज एफ्टॉल। It was a project, है ना, in which various countries are participated. एफ्टॉल का मतलब होता है assembling the fungal tree of life, okay, and there was also another project which was named as deep hypha. We will study it later, है ना, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में भी ये सब पढ़ेंगे, ओके। तो हमने देखा कि फंजाई एग्जिबिट डाइमॉर्फिज्म, यानी कि इसके पास दो डिफरेंट स्टेजेस होती है। आफ्टर दैट ये डी बैरी को स्ट्राइक किया, है ना, एंड ये उनको हेल्पफुल भी मिला दैट ही स्टडी एंड इनिशिएटेड द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। ही इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। डी बेरी ऑल्सो इनिशिएटेड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। इन्होंने ऑल्सो स्टडी किया लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। मिक्सोमाइसीट्स, यू नो, दिस वाज द ऑर्गेनिज्म विच वाज इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ नाउ, बिकॉज मिक्सोमाइसीट्स यानी कि जो हम लोग पुराने टाइम पे पढ़ते थे कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, है ना, कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स, जो कि सूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, तो दे आर ऑल मिक्सोमाइसीट्स। तो इन्होंने लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिक्सोमाइसीट्स का भी स्टडी किया था। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। And he came to know that, or he always considered the myxomycetes in animals, which is mycetozoa. ये myxomycetes को animals में consider करते थे, है ना, बिकॉज प्लाज्मोडियम स्टेज होता था इनका। तो प्लाज्मोडियम स्टेज इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू एनिमल्स ओनली, दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, है ना। तो इन सब क्राइटेरिया को देख के इन्होंने इनको एनिमल्स में रखा। एंड दे हैव ऑल्सो फेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इफ़ यू सॉ द फंजाई, इट हैज़ सैप्रोबिक और एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो इनका और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस थे, तो वी विल स्टडी वन बाई वन। डी बेरी को सबसे पहले तो हम सर डी बेरी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी का दर्जा दिया गया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फाउंडर एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरासिटिज्म एंड सैप्रोटिज्म या सैप्रोबिज्म नेचर ऑफ द लाइकेंस। पैरासिटिज्म एंड सैप्रोबिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड with the cost of other organism, है ना। He discovered the heterogeneous nature in wheat rust.
heterosism in wheat rust, black rust, okay, black wheat rust, which is also known as Puccinia graminis tritici, black rust or stem rust, what we call. He gave accounts of the development and sex in several fungi. He was also gave the development of sex in fungi. तो ये सब डिस्कवरी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी पे था रेदर देन टेक्सोनॉमी, है ना. तो ये भी एक पॉइंट है. हिज इंटरेस्ट वॉज मोर इन बायोलॉजी रेदर देन टेक्सोनॉमी. इनका एक बुक था जिसको अगर हम रिकास्ट किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. द बुक इज़ कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ द फंजाई, माइसेटोजोआ एंड बैक्टीरिया. ओके, तो ये तो बेसिक सा नॉलेज था. तो अब हम बात करते हैं इनका एक और इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन था जो कि जिनसे वो जाने जाते थे. ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि हम पैथोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वाई ही डी बेरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. एक्चुअली उस टाइम पे आयरिश फैमिली विच केम इन आयरलैंड, इसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी क्योंकि आयरलैंड के जो लोग थे वो एक्सक्लूसिवली जो पोटैटो जो था उनका स्टेपल फूड था, है ना, पोटैटो. तो पोटैटो में एक डिजीज़ आई थी एंड द नेम ऑफ द डिजीज़ उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सा डिजीज़ है, एदर इट विल बी वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ और व्हाट. बट डी बेरी ने पता किया था. ही प्रूव्ड दैट द डिजीज़ वाज कॉज्ड बाय disease caused by fungus. उस टाइम पे एक अकाल सा पड़ा हुआ था जिसमें कि फील्ड सारी रोटन स्मेल से भर चुकी थी. तो डिजीज कॉज्ड बाय फंगस एंड द नेम ऑफ द फंगस लेटर नेम्ड एज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को नाम से जानते हैं. Okay, because of this, D. Berry is also known as father of plant pathology. Okay, let's talk about the system of the classification. है ना, Linnaeus, he gave the binomial nomenclature. Binomial nomenclature. इनका फेमस बुक था विच इज़ सिस्टमा नेचुरे. तो इन्होंने इनके बुक्स में जितने भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना. नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टैक्सॉन, मीन्स रैंक के अकॉर्डिंग. तो बाइनोमियल इज टू सिस्टम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज वन इज जीनस एंड स्पीसीज. ओके, तो जीनस एंड स्पीसीज इन विच द जेनेरिक नेम, है ना, जेनेरिक नेम इज ए नाउन, hence it should be written in capital, and species is an adjective which represent the genus, adjective. So whenever we write the species, we should write it in small letter. We should start the species name with small letter after the genus. Okay, तो Carolus Linnaeus का main contribution क्या था? He gave the two kingdom classification in which he categorized the those who came under plantae, under plants, and
those who are animals who came under Animalia on the basis of autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. On the basis of movement, on the basis of nutrition, earlier he was divided, and the earlier system of classification is mostly based on morphological feature. Okay, प्लांटे में अगर हम लोग देखेंगे तो plants they are all autotrophs, they are all photosynthetic, they produce their own food, autotrophs, and animals are heterotrophs. हेटेरोट्रॉप्स में भी 3 टाइप्स होते हैं, वी विल सी इट लेटर. लीनियस का ये कहना था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लांट्स के अंदर भी नहीं आते, एनिमल्स के अंदर भी नहीं आते थे, तो ही वाज थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे. तो इन्होंने उनके लिए भी एक जीनस बनाया, वर्म्स. इनका एक कैटेगरी था वर्म्स, उसके अंदर एक जीनस आता था चाउस. तो इन्होंने फंजाई को इसके अंडर रखा था. बट इनका ये डाउट था कि फंजाई वॉज रिजेंबलिंग द मोर कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई मैच्ड विद द प्लांट्स, बट ये डाउट में थे उस टाइम. लेकिन फंजाई को तब तक इन्होंने वर्म्स ग्रुप के अंदर, जीनस जो था वो हमारा चाउस था, उसके अंदर रखा था. Moving toward the next kingdom, which is 3 kingdom classification. Ernst Haeckel gave the 3 kingdom classification in 1866. इनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो कि यूनिसेलुलर थे. They cannot fit inside the kingdom Plantae and kingdom Animalia. तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया which is Protista. हेकल के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 किंगडम दिया था. उसमें इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमिलिया तो पहले ही कैरेलस लीनियस में दे चुका था. तो प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने किनको इंक्लूड किया था? बैक्टीरिया, cyanobacteria which is blue green algae, fungi, protozoa, slime molds. In which the bacteria and blue green algae was called lower protist. And fungi, protozoa and slime molds are called higher protist. Okay. So in 1956, again in 1956, Copeland, he was responsible for the giving the 4 kingdom classification in which he includes Monera. यानी कि जो हम प्रीवियसली देखे थे कि जो लोअर प्रोटिस्ट था उनको एक अलग किंगडम दे दिया गया विच इज़ किंगडम मोनेरा, बिकॉज दे ऑल्सो डिफर्स बाय देयर सेल वॉल कंपोजिशन, है ना. तो ये फिट नहीं हो रहे थे इन ग्रुप के अंदर. किंगडम मोनेरा. Copeland separates the lower protist and he put the another new kingdom which is Monera, जिसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा. अर्लियर इनके अंदर एर्की बैक्टीरिया भी इसी के अंदर था, मोनेरा के अंदर ही. आफ्टर दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969. इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अपार्ट फ्रॉम द 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑटोट्रॉप्स
heterotrophs. There is another mode of nutrition which is absorptive mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition, absorptive. जो फंजाई थे वो they exhibit the absorptive mode of nutrition and also on the basis of their cell wall composition. Fungi consist of chitin and cellulose with few exceptions, chitin, cellulose. तो chitin जो है वो एनिमल्स के कैरेक्टर को दर्शा रहा है एंड सेलुलोज जो है प्लांट्स के कैरेक्टर को दर्शा रहा है. तो दे कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज. सेलुलोज हमारे ऊमाइकोटन फंजाई में होता है एंड काइटिन हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रू फंजाई में भी होता है. और अगर हम प्रोटोजोआ के केस में देखें तो उनके स्पोर्स में भी काइटिन ही होती है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट केम टू नो दैट फंजाई शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम, पहले कहाँ रखा गया था, नो नॉट मोनेरा, प्रोटिस्टा में रखा गया था. तो आफ्टर दैट इनको सेपरेट करके अलग किंगडम दे दिया गया विच इज किंगडम फंजाई. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 1990 that is 20th century, at late 20th century means starting of the 21st century, इस टाइम पे कार्ल वूज इन्होंने दिया 3 डोमेन सिस्टम. इन्होंने दिया 3 डोमेन सिस्टम. डोमेन is higher rank than kingdom, which is it means empire. तो 3 डोमेन के अंदर था हमारा आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. तो लेटर क्या किया गया, आर्किया एंड बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया बिकॉज आर्किया का सेल वॉल कंपोजिशन अलग था. इसके पास अगर म्यूरिन होता है तो आर्किया के पास सूडोम्यूरिन होता है एंड दे कैन अडेप्ट द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. आर्किया दे आर ऑल्सो फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स एंड द एनएरोबिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं एंड द जहाँ पे एसिडिक कंडीशंस होती है, हेलोफाइल्स होती है, वहाँ भी ये पाई जाती है. दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. सो इसी कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए इनको अलग किया गया, बैक्टीरिया एंड आर्किया. तो यूकैरिया, ओके. तो आर्किया एंड बैक्टीरिया शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर को विच इज प्रोजीनोट. बट व्हाट अबाउट द यूकैरिया? देयर वाज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नेम अर्कैरियोट. अर्कैरियोट, इससे यूकैरिया का ओरिजिन हुआ. तो अर्कैरियोट भी कहीं ना कहीं प्रोजीनोट को शेयर करते थे. ओके, अर्कैरियोट दे आर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नाउ एक्सटिंक्ट. थ्री डोमेन में बेसिकली हमें यूकैरियोट से मतलब रखना है बिकॉज वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर. आर्किया एंड बैक्टीरिया को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम करते हैं यूकैरिया जिसके अंदर फंजाई आती है. तो इनको 3 डोमेन्स आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया इन विच आर्किया वाज डिवाइडेड इनटू 3 किंगडम्स. हम वो बाद में पढ़ेंगे. तो बैक्टीरिया इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी किंगडम एंड यूकैरिया which was divided into 6 kingdoms. Six kingdoms. So what are those 6 kingdoms? We will discuss now only. Animalia, fungi,
Plantae, Chromista, Protozoa, Stramino, okay, this is I, Straminophylla. So these are the 6 kingdoms. In which Animalia, fungi and Plantae, these are considered as older, ये पहले भी यही थे जो अभी है, मोनोफिलेटिक. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोफिलेटिक? मोनोफिलेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द कॉमन एंसेस्टर. जैसे कि वहाँ पे हमने प्रोजीनोड देखा था, है ना, आर्किया, बैक्टीरिया इन यूकैरिया, दे शेयर द कॉमन एंसेस्टर विच इज प्रोजीनोड, तो दे आर द मोनोफिलेटिक. एनिमिलिया, फंजाई एंड प्लांटे आर older monophyletic multicellular organism. They are complex. Talking about the Chromista, Protozoa and Straminophylla, they are new. New monophyletic. दो टर्म्स होते हैं, मोनोफिलेटिक एंड पॉलीफिलेटिक. मोनोफिलेटिक शेयर्स द कॉमन एंसेस्टर व्हाइल द पॉलीफिलेटिक फेल्स टू शेयर द कॉमन एंसेस्टर. ओके, न्यू मोनोफिलेटिक यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर है, सो वी कांट राइट इट एज यूनिसेलुलर ओनली. अगर कुछ भी एक्सेप्शंस है तो हमें लिखना पड़ेगा ना विथ एक्सेप्शन, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. यूनिसेलुलर एंड फ्यू सिंपल मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर है बट सिंपल, बट दे हैव कॉम्प्लेक्स. Okay, so these the older monophyletic and new monophyletic, older monophyletic plus new monophyletic, older monophyletic plus new monophyletic together constitute eukaryotic crown of the tree of life, है ना, they all belongs to eukaryote, hence tree of life. ओके तो ये था क्लासिफिकेशन सिस्टम. हम देखे ओल्डर क्लासिफिकेशन सिस्टम से मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब तक का जो डोमेन सिस्टम का था वो देखा, पर हमें फोकस करना है फंजाई पर. मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तक जितने हिस्ट्री पार्ट और क्लासिफिकेशन पार्ट पढ़ाया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी. वी विल ट्राई टू डिस्कस इट ऑन मोर डेप्थ ऑल्सो ऑन आवर एडवांस माइकोलॉजी सीरीज. तो तब तक के लिए नमस्कार.